Is my screen visible? Yes. We have completed. Turn on your video. We have completed electric potential in the last class, right? The formula was V is equal to work done upon charge, right? Yeah. When we are talking about, since it is this chapter is having a lot of formulas, so please keep in track with that. And now when we are talking about two separate points, we talk about the potential difference, है ना? The difference between both the potential at those points, right, Abdul Rahman? In the last class, I've told you. And again, I've told you questions like these will be asked where it will be given define 1 ampere, define 1 volt, right? So, how we have to do it with it? First, we need to write the main formula that is V is equal to W upon Q. ठीक है? Yeah. चलो. We were on Ohm's law, am I right? I think I have briefed you about resistance. Yes. ठीक है बच्चे. चलो, write this question. Did you make this graph as well? Yeah. Okay, write this question now. Which question? The red one. Have you written this? Okay. I mean, No. did you write this? Okay, see. Again, this is direct formula based. Okay. So they are talking about what is potential difference between terminals of battery if 250 joules of work, 250 joules, that means work done is given to me, is required to transfer 20 degrees Celsius. That means I can apply the formula V is equal to work done upon charge. Work done is also given to me. Charge is also given to me. Okay? Simply by dividing, I can find the voltage or the potential difference, right? Yeah. Okay? So these are direct formula based questions, okay, which are pretty much scoring. So please do remember all the formulas. First, we have studied about the current I is equal to Q by T. We have studied about Q is equal to N into V, where there was a relation between N number of electrons and the charge on each electron, right? Q is equal to N into E, right? The second formula. Now we are talking about the third formula, that is V is equal to work done upon charge. Okay, bache? After that, we have talked Yeah. about Ohm's law. Ohm's law, which relates V is equal to IR. That means voltage is equal to current into time. Okay? That is very important because that will be asked in the numericals, that will be asked as theory questions. Okay. So that is why I'm Yeah. saying again and again, please keep a track of all these formula. Okay. Yeah. Written. No, no. Okay, write the question. Write this. Approach is easy, direct formula based. Yeah. Right, Abdul Rahman? Okay. After that, I have divided But 20. how is 25 by 2 is equals to 12? Oh, 2 into 2. 2 divided by 25.
Done. Okay. So the next one we have is about resistance. Okay. Resistance I've told you. Let's say see. Can you see my screen? Am I visible to you? Yeah. ठीक है. See, this is my conductor. Okay. Current is passing through it. All right. Yeah. Okay. Let's say this is my conductor, and in this current charges are flowing. That means current is developed. It is passing through it. Now, of course, the material of this conductor will oppose the direction of electrons, will oppose the direction of charges. Okay, that is what we call resistance. Resist करना मतलब उसके पाथ में, करंट के पाथ में रुकावट लाना, obstruction लाना, obstacles लाना. ठीक है? If you want to visualize, so it is the property to oppose the flow of current. ठीक है? मतलब stop. Exactly. कह सकते हैं एक तरीके से उसके पाथ में रुकावटें लाना. ठीक है ना? Yeah. मुझे ये बताओ, दो केसेस है. ठीक है? एक केस है जिसमें द फ्लोर इज स्मूथ. ओके. एंड एक केस है जिसमें फ्लोर तो है बट उसमें बहुत सारे पत्थर है. तो आप कौन Yeah. सा वाला पाथ लोगे? What? I am saying, let's say there are two floors. Okay. Okay, Yeah. Abdul. One floor is pretty much smooth, and the other floor is having a lot of stones, a lot of irregularities. Okay. Yeah. And both are leading to the destination. Okay. Visualize हो रहा है? Yeah. तो आप कौन सा वाला path लोगे? Which one would you prefer? Smooth. Smooth one, easy, है ना? So Yeah. similarly, let's say so ये जो stones थे in your path, these were your obstacles, है ना? I mean, चलने को तो आप वहां से भी जा सकते हो, है ना? बट आपके पाथ में रुकावट लाएगा बीच बीच में, है ना? Yeah. ठीक है. सो जिस जिस मटेरियल का ज्यादा रेजिस्टेंस, उधर से करंट कम जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स करंट भी चाहेगा कि मुझे स्मूथ पाथ मिले, राइट? Yes. सो सिमिलरली, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम, यानी कि ऑब्स्टेकल्स कम, ऑब्स्ट्रक्शंस कम, अपोज करने वाला कम, है ना, वहां से करंट स्मूथली चल जाएगा. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें से करंट कम कम जाएगा, है ना? विजुअलाइज हो रहा है? Yes. सो ये क्या मैं कह सकती Yeah. हूँ, जो वुड होता है, रबड़ होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं ना, Yeah. उनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता होगा जरूर, तभी तो करंट कम कम जाता है. Yes. ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू मेटल्स, मेटल्स में से सिल्वर हो गया, जिसकी हमारी वायर्स बनी हुई होती हैं, लेट्स से वो वाले मेटल्स हो गए, टंगस्टन, कॉपर. ठीक है. सो जो ये सब Yeah. होते हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये जरूर इनकी रेजिस्टेंस कम होती होगी, बहुत कम होती होगी, Yeah. राइट? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल कम देते होंगे, तभी तो करंट अच्छे से स्मूथली फ्लो होता है इनमें से, राइट? तभी तो हम Yes. इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं, है ना? करंट के पाथ में ये Yeah. लोग ज्यादा हिंड्रेंस लाते ही नहीं होंगे. एम आई राइट, अब्दुल? Yes. So this is what it talks about. ठीक है. Resistance depends on the length, area of cross section, nature of material and temperature. Temperature वाला point हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है. ठीक है. नेचर ऑफ द मटेरियल जो मैंने अभी बताया, वुड हो गया, एक हो गया मेटल. दोनों में से कौन है अच्छा कंडक्टर? ऑफ कोर्स मेटल, Metal. है ना? तो ये नेचर ऑफ मटेरियल में इस एग्जांपल से आ रहा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, ये मेरा कंडक्टर है, ये देखो, ये मेरा कंडक्टर है. इसका ये कुछ सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा Yeah. है ना बच्चे? सो दिस इज व्हाट आई कॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और ये सपोज ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर वायर है, ये पूरी इसकी लेंथ होगी, है ना? ये तो लंबी सी पूरी लेंथ होगी, ये तो लेंथ तो इजी है. पर Yeah. ये जो अगर मैं वायर को ऐसे बीच से काट दूंगी तो सर्कल सर्कल में ही तो आएगा. सो दैट इज व्हाट वी Yes. कॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इज दैट क्लियर? Yeah. ठीक है. तो रेजिस्टेंस इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है, दैट वील स्टडी इन डिटेल. Alright, first write the basics of resistance, and unit मैंने resistance की I've already discussed in the last class. That is Yeah. ohm, right? Denoted by Yeah. this symbol. ठीक है? Okay. Okay, write this. Turn on your video.
डन। ठीक है, अब ये वाला लिखो, फिर मैं इसकी वर्किंग बताती हूँ। कीपिंग V constant, the resistance of a circuit is doubled, the current will become। अगर मैं रेजिस्टेंस डबल कर दूं तो करंट तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट? जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, है ना? या करंट तो दूसरा वाला पाथ लेना चाहेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम है, जिसमें ऑब्स्टेकल्स कम है, जिसमें उसका पाथ स्मूथ है। अब इधर हाई रेजिस्टेंस है, सो व्हाई वुड इट टेक दैट पाथ, राइट? सो इफ आई एम डबलिंग द रेजिस्टेंस, if I am literally doubling the resistance, then obviously my current will become half, है ना? करंट तो कम ही जाएगा, या जितना पहले जाने वाला था उससे आधा ही जा पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अब डबल कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए, तो करंट भी हाफ टाइम कम हो गया। गॉट इट? या क्या लॉजिक ओके। लगाया हमने? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वही वाला। ठीक है, राइट दिस वन। ऐसे या क्वेश्चंस आएंगे। डन। ठीक है, अब्दुल रहमान, यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चे? जितना भी आई एम टेलिंग यू, रिवाइज हो कर रहे हो साइड बाय साइड? यस। श्योर? यस ओके। मैम, कैन यू लाइक हमने जो पहले के क्वेश्चंस किए थे ना, क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ 6 into 10 रेज टू 46 इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वेश्चन किया था ना, हाँ हाँ, वो एक बार आप फिर से समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था, तो अच्छा अच्छा, मतलब मैं ओके, कंफ्यूजन में था। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग्स यूज करो। सही है, सही है। जब मिल रहा है अपने को, यूटिलाइज करेंगे वो, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, राइट? यू वर टॉकिंग अबाउट दिस वन। यस। हाँ, यही वाला था बच्चे, देखो। 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये क्या दे रखा है अपने को? क्या ये चार्ज है? यस। नहीं, क्योंकि चार्ज होता तो सिंबल कूलम नहीं लगा हुआ होता, सी नहीं लिखा हुआ होता, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का है है। ना? मैंने बताया था, कूलम्स SI यूनिट यस। इज सी, सी। राइट? So what is this? This is the number of electrons. Number of electrons. अब if I am getting n, that means कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक ही फॉर्मूला है जिसमें n आ रहा है, Q is equal to n into 8, राइट? या है ना? तो इसमें ना बस ये कैलकुलेटिव है, फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है, ठीक है? तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो ना तो वो बता देना मुझे। सो एनीवेज, सो सबसे पहले व्हाट आई हैव डन, देखो, Q is equal to n into E, राइट? मुझे टाइम भी दे रखा है ना? मुझे करंट या निकाल, राइट? यानी कि मुझे C नहीं दे रखा, है ना? करंट के लिए या भी C चाहिए, और अगर यस। n दे रखा है तो ऑब्वियसली दे विल बी टॉकिंग अबाउट चार्ज ओनली, राइट? तो फर्स्ट या मैं क्या करूंगी, I इज इक्वल टू Q/T लगाने से पहले Q की वैल्यू निकालूंगी। Q इज इक्वल टू n इंटू E, एन इंटू ए। है ना? यस, n ये दे रखा है ना? 6 या into 10⁻46 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो, यहाँ जो मैंने समझाया था, 6 into 10⁻46, ये हो गया अपना n,
ई हो गया अपना 1.6। ई की वैल्यू याद रखनी है, क्वेश्चन में मेंशन या नहीं होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19, right? So now या after multiplying, सबसे पहले what we are doing, अप्रोच क्या रखेंगे कैलकुलेशन में इजी करने के लिए, जो टेंस वाले हैं ना उनको कर देते हैं। when the bases are same and they are getting multiplied, when the bases are same and they are getting multiplied, the powers are added, यानी कि या 46 प्लस माइनस 19 है ना। अब ऑब्वियसली या इंटीजर है इसलिए प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, बट रूल के हिसाब से तो मैंने प्लस ही लगाया है। या इतने मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया, 6 इंटू 1.6 विच वॉज कमिंग आउट एज 9.6। नीचे क्या था, नीचे वॉज 20, राइट, या है ना। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू सिंपली, इसका क्या आया सॉल्व करके 10⁻27, ठीक है। मैंने 9.6 को डेसिमल में लिख दिया, डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में लिख दिया। 9.6 को कैन आई राइट 96/10, है ना, क्योंकि एक डेसिमल है ना, 0.6 एक या डेसिमल प्लेस है, तो डिनोमिनेटर में भी वही आएगा जिसके पास एक जीरो होता है, यानी कि 10। यस So 96/10 into 10⁻27/20. Now if you are gonna solve it further, you'll be getting this 4.8 into 10⁻26 ampere, ठीक है। यानी कि मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया 96 को, है ना, 48 आ जाता है। फिर इस पे मैंने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। सो 4.8 into या 10⁻26, ओके। व्हाई डज 27 बिकम 26? क्योंकि नीचे भी तो है ना एक, तो माइनस तो हो जाएगा उससे, है ना। ये 10 मैं नीचे समझा ले नहीं आई ना। मैं। बच्चे देखो, या when the bases are same and they are getting divided, then the powers are subtracted, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। या यानी कि 27 - 1 हो गया, नहीं हो गया, ये देखो यहाँ या लिखा भी है मैंने, ठीक है। यस सो 10⁻26, ये जो लॉजिक है ना, जो बेसिस वाला मैंने बताया, इफ यू आर फॉरगेटिंग साइड में नोट बना के लिखते जाना, ठीक है। अब रिवीजन के लिए जब फिर से या लेक्चर देखोगे तो लिख लेना, ओके because sometime it happens the videos are sometimes not uploaded, so make sure यस you are writing it। ओके चलो नेक्स्ट, इनफाइनाइटली हाई यार, मैंने बताया जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो फिर उसमें आएंगे इंसुलेटर में, क्योंकि वो करंट को पास होने ही नहीं देंगे, क्यों, या तो वो इंसुलेटर कहलाएंगे, बिकॉज या ठीक है। और अगर मैं बोलूं लो लो रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएंगे कंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस या कम है यानी कि ऑब्स्टेकल ऑब्स्ट्रक्शन कम दे रहे हैं करंट को स्मूथली फ्लो करने दे रहे हैं, तो वो तो कंडक्टर ही होता है। या या नाउ राइट दिस वन। will these questions come in exam? हम्म, Will this same type of questions come in exam? यस, Okay. ठीक है। अभी तो इजी वाले करवा रही हूँ, अभी टफ वाले जैसे वो वाला था कैलकुलेटर वाला ऐसे भी आता है। अब रेजिस्टेंस करके एक टॉपिक है, वो स्टार्ट होगा, उसमें काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। Yeah. नीचे का भी क्वेश्चन लिखना है? यस,
शार्पनर की जरूरत नहीं है, शार्पनर तो यही है मेरा। मैं तो जंप कर सकती फिनिश। ठीक है, अब मुझे आप बताओगे इसमें क्या क्या दे रखा है। ओम लिखा है तो ये क्या हो गई? हूँ। ट्राई करो बच्चे। रेजिस्टेंस। वेरी गुड। ये क्या हो गई? वोल्टेज। वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब अगर मुझे करंट निकालना है तो? कोशिश क्या? करो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चेक कर सकते हो नोट्स में से। वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? We can use V is equals to IR. यस। कौन सा फॉर्मूला है ये? ओम्स लॉ है ना? Yeah. ठीक है, निकालो वैल्यू, आई की वैल्यू निकालो, खुद करना है वाला। वी की वैल्यू डालो बच्चे 230। आई की वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है। इनटू आर की वैल्यू डालो 25। सिंस आई एंड आर आर getting multiplied, so when r will go to other side of is equal to 25 will get divided by 230 है ना? Do you write the formula like V is equals to IR or V by R is equals to I? सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिखोगे v is equal to आई आर, देन ऑफ कोर्स वी नो आई अपने को निकालना है, राइट? सो वी विल बी राइटिंग v by r is equal to i। ठीक है, हमने उसी फॉर्मूला से तो निकाला है v is equal to आई आर वाले से, करेक्ट? ठीक Yeah. है, So do you तो write दोनों like निकले। 230 is equals to I into R or इंटू like 25। IR? हाँ, Yeah, into 25. यस, ये लिख के मुझे सॉल्यूशन सेंड करोगे फास्ट। ठीक है, कैलकुलेट करना है सही से, ट्राई करो।
और I sent him. How much are you getting? Oh, what? How much are you getting as the value of I? 9.2. ठीक है, you have sent. Yes. बच्चे फॉर्मूला कहाँ लिखा है? v is equal to I R. सोल्यूशन में मेंशन ही नहीं कर रखा है आपने, Oh, डायरेक्ट कर दिया है। okay. ठीक है, मेंशन करो v is equal to I R Yeah, और okay. आंसर करेक्ट है। ठीक है, Yes. बस वो मेन चीज मेंशन करो वरना हाफ मार्क्स कट जाएंगे। और क्या मेंशन करना है? एम्पियर। ठीक है, द यूनिट। Oh, ओके, but yeah. धीरे धीरे पूरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और बच्चे ये भी लिख लो, कन्वर्जन। मिली एम्पियर कैसे लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है? माइक्रो एम्पियर कैसे लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये नोट डाल के लिख लो। Yeah. ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं इन लोगों के? हाँ जी, 10⁻⁻⁶। Yeah, okay. Done. ठीक है, तो मिली का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये उस वाले का भी है जो ये वाला क्वेश्चन था ना, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, ये वाला डबल कैसे हो गया, अगर हाफ कैसे हो गया, मतलब अगर आपको उसकी वर्किंग चाहिए होगी तो आप ऐसे करोगे। पहले केस में, दोनों के केस में वी तो नॉर्मल था, है ना? वी तो सेम था। Yeah. आई अपने को कैलकुलेट करना है। इधर भी न्यूमरेटर में भी आई हैव अप्लाइड द ओम्स लॉ, इन द डिनोमिनेटर टू आई हैव अप्लाइड द ओम्स लॉ। ठीक है बच्चे, Yeah. वी दोनों के केस में सेम था, इसलिए मैंने कुछ V1 V2 लिखा ही नहीं है उसे, वी ही लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कीपिंग वी कांस्टेंट, रिमेंबर? Yeah. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ओम्स लॉ लगाया, है ना? v से v तो कैंसिल हो गया, सो इट इज 1। सो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, है ना? तो नाउ आई कैन राइट I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, है ना? अब जो R2 की वैल्यू थी, R2 की वैल्यू थी वो हमको क्वेश्चन में इट वाज गिवन दैट यू हैव टू मेक इट ट्वाइस, डबल कर दिया है रेजिस्टेंस, है ना? तो इट इज ट्वाइस ऑफ R1। R1 से R1 कट गया, ठीक है, R1 से R1 कट गया। 2 was getting multiplied by I2, so when it will go to the other side of is equal to, it will get divided. Am I right? Yeah. So अब देखो और करंट क्वेश्चन कितना का आ रहा है? फर्स्ट का हाफ आ रहा है ना? Yeah. ठीक है, so अगर ये वर्किंग आपको लिखनी है, आप लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है इन द क्वेश्चन इट्स नॉट आस्क्ड एज MCQ, हो सकता है ये 2 मार्कर में पूछ ले। तो 2 मार्कर में तो ऑब्वियसली एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट द वर्किंग एज वेल, है ना? आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी। ठीक For है, this question, the one I just did. ना फॉर द प्रीवियस वन, दिस वन, MCQ वाला। Oh, ठीक है, अगर स्पेस है ना तो लिख लो। okay, I'll write. या यहाँ से है स्टार्ट बच्चे, v इज इक्वल टू I1 R1, पूरा ब्लैक वाला और पूरा रेड वाला। Yeah. Amadi, the question they did not
mention anything saying that resistance ऐसे is ही तो इंटरप्रेट करना doubled? है, दैट्स हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट. देखो क्वेश्चन क्यों नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा है कीपिंग वी कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओ ऑफ अच्छा, अ वो सर. क्वेश्चन. हाँ ये वाला ही तो बोल रही हूँ मैं, एमसीक्यू वाला. अच्छा. रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड, तो यानी कि R1 नहीं R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1. ठीक है, ऐसे करके लिखना या. है. R1 हमने पहली बारी में ओरिजिनल रेजिस्टेंस ले ली, R2 जो अब हम गिवन दे रहे हैं, जो हम चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं. ओके या मैम, यहाँ प्रेयर टाइम हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा. क्या? या प्रेयर टाइम हो गया है तो आई हैव टू गो. I mean, how much time will you take? 10 minutes? um I have wait. Yeah, okay. 10 minutes. ठीक है, so okay, we'll continue the class after 10 minutes. Please be on time. ठीक है. Yeah.
Yes, ma'am. Yes, on time. Nice. So, shall we continue? Yes. Yes. Okay. Is my screen being shared? Did you Yes. write the solution of this one? Yes. Yeah, ये वाला लिखो, इसकी फिर अप्रोच है टेल यू। इसमें हम 2 बार ओम्स लगाएंगे अगेन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके, ठीक है? फर्स्ट राइट दिस। Yeah. What is the fourth word? An electric iron allows a current? Allows a current, which one? Draws a current of 3.4 ampere from 20 to 20 volt supply line. What current will this electric iron Yes. draw when connected to 110 supply line? Okay. Done. ठीक है. So now, can you tell me what is gonna be the approach of this question? सबसे पहले I दे रखा है, V दे रखा है ना? What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line?
यानी कि जब इलेक्ट्रिक आयरन की ही बात हो रही है, दोनों के केस में रेजिस्टेंस तो सेम ही होगी, है ना। या या तो मैं फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। या रेजिस्टेंस कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, V अपॉन आई करके इज इक्वल टू आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता या है, तो V अपॉन आई कर दूंगी तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ना मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। बट मैंने उसको और सॉल्व नहीं किया और डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये फिर से जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो टू या टू जीरो अपॉन 3.4, 3.4 को अगेन अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो वो 34/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया, ठीक है। 220 इंटू 10 अपॉन क्या 34। व्हाट क्या? 3.4 को हाँ हाँ कुछ हाँ, बोला आपने? यस यस यस, 3.4 को आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ फ्रैक्शन, तो क्या होगा 34/10, या है ना। ये देखो, ये लिख रखा मैंने, या ये देखो यहाँ और क्लियरली लिखा है मेरे पूरा स्टेप। 3.4 34/10 हो गया। तो ऑब्वियसली ऐसे तो ऐसे फॉर्म में तो हम कुछ करते ही नहीं है, ये जो नीचे वाला ही ऊपर चले जाता है ना। या 220 इंटू 10 अपॉन 34 विल, अब सिंप्लीफाई करके इट विल गेट 1100 अपॉन 17 ओम्स। ये कितना है अपना आर, ठीक है। ठीक है बच्चे। 34 को वेट, ये कैंसलेशन का पार्ट जरा मतलब कंफ्यूजिंग है। 34 बच्चे को दोनों 17 टू से के कटते टेबल हैं। से कट हो सकते हैं ना, 2 11 जा और 2 17 से 34, टू इलेवन अच्छा, 2 हंड्रेड का, या ठीक है। ओके। या वही बेसिक बेसिक कैलकुलेशन एक बारी नजर मार लेना। उसके बाद मुझे आर मिल गया। आर तो अब देखो, अगर एक आयरन की ही बात हो रही है तो आर तो उसका वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना, या राइट। सो V इज इक्वल टू आई आर मैंने फिर से अप्लाई किया, बट इस बारी मैंने वोल्टेज चेंज कर दी 110, क्योंकि अब हमने उसे 110 पे रखा है। 110 वोल्टेज दी उस सेम आयरन को, तो रेजिस्टेंस तो इतना कैलकुलेट कर ही लिया हमने।